particular women. For our director ma'am has sent her best wishes to all the students and the faculty members present here. Yeah, I will invite all of you if you have anything to say, if you want to dedicate this special day to anyone who is very special in your life. A very good afternoon to all of my friends. So my name is Natasha and I am a student of BA second year, and I really feel blessed to be a part of this college. So today I would like to share something, a special moment of my life. So for everyone, there is a woman, for them there is their mom, but I have also one woman who is not my mom, and with her I don't have any blood relation with her, but she is the one who is not only a best woman of this world, but she has a beautiful heart, and that is my cousin's mom. And I would like to share one thing with you. So can I? Yes. So sir, when I was in 9th standard, so firstly I would like to share a thing that I belong from Rajasthan, and in Rajasthan the people don't allow girls, their daughters for study, but and in my family it's too rude for girls for their daughters. So when I was in my 9th standard and I used to go to tuition, NGO, so suddenly my mom came and she said, Natasha, it's enough and you don't need to study because all of family members are against for me and I can't do anymore. But you know what? That time, one of my cousins, she's Renu Didi, and she was there. She just hugged me and she said that, Natasha, don't worry, I am with you. Just pray and be faithful with yourself. And it was 9 p.m. when her mom came to my home, and I don't know what she said. That situation was my dad was not ready to listen anyone, but she was the one that I don't know what she said, but she tell him something about I don't know what was that, but a sudden moment my dad said, Natasha, you will go to your school and you will go to your tuition classes and whatever you want to do, you can. I am the first girl from my home, and I am the second girl of my society, my caste, who is studying and who is in second year. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे आके बोलूँगी, पर मैंने जब देखा कि दूसरे बच्चे ऐसे वो बातें कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ बातें याद आने लगी। लाइक बचपन से ही हम लोग हमेशा अपनी मॉम को अपना सुपर हीरो मानते हैं। मुझे भी ये याद है कि बचपन से मैं आपसे जितनी भी बड़ी हुई हूँ और जितनी भी चीज़ों में मेरे को कुछ प्रॉब्लम आई है, मेरी मदर ही होती है तो हमेशा मेरे को पीछे से कहती है कि डर मत, ऐसी चीज़ों से कुछ नहीं होता, फेस करेगी तो लाइफ में आगे बढ़ेगी। और आज मैं उन्हीं की वजह से मेरे को लगता है कि मैं आज इस मूवमेंट पे हूँ या मैं इतनी कॉन्फिडेंट बनी हूँ, जो भी हूँ उन्हीं की वजह से। बचपन से मुझे हमेशा ये होता था कि लाइफ में कभी कुछ चीज़ में होती थी कि मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मतलब मम्मी का ये होता था क्यों नहीं कर पाएगी, तो दूसरों से डिफरेंट थोड़ी ना, सब कर सकते हैं तो तू भी कर सकती है। और वही वो मुझे लगता है कि आप में से सबके साथ शायद यही होगा और सबकी मदर ने फादर ने सबने ऐसे आप लोगों को अप्रिशिएट करा ही होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरी मदर ही मेरी सुपर हीरो है और वो हमेशा मेरी मदर ही मेरी सुपर हीरो रहेगी। सबसे पहले तो पूरी माँ शक्ति को मैं नमन करता हूँ आज के दिवस पर। मेरा विशेष उद्देश्य ये था कि आपसे बातें होंगी और कुछ पता लगे, कुछ क्लासेस की फीडबैक भी आएगी और आज के दिवस को हम अच्छे तरीके से सभी लोगों के साथ मनाएंगे। और मुख्य उद्देश्य दोबारा कहा, जैसे आज कुछ छात्राओं ने कुछ अपनी बात रखी, हम चाहेंगे कि आप में से जितने भी लोग कुछ बोलना चाहें निश्चित रूप से बोलिए, क्योंकि एक प्लेस ऐसा है जहां आपके अपने लोग हैं। और मैं शुरुआत कहां से करना चाहूंगा, कभी पहले तो अभी सभी गुरुजन मित्रों को नमस्कार करता हूँ। बताया जैसे वायदा जी ने आपको बताया कि आज के
डालता है कि सभी टीचर्स बैठे हुए हमारे रुचिका है, डॉक्टर असगर अली जी और शक्ति जी ने कल शुरुआत की थी सर आज कल 8 मार्च है, कल कुछ कार्यक्रम होना चाहिए, तो शायद सूत्रधार वही बना और वहीं से शुरुआत हुई है। मैं आपको शुरू में ही बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज की विद्यु जैन करके छात्रा ने पूरे विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से टॉप किया है। और अभी हमारी गवर्निंग बॉडी ने उनको पहले तो सोचा था कुछ कैश प्राइज दिया जाएगा, लेकिन सैमसंग का एक टैबलेट उनको देने का सोचा है, उनको दिया गया। तो मुझे लगता है कि आज के दिवस पर इनका नाम लेना भी बहुत जरूरी था कि आप देखिए आपकी हमारी छात्राएं कितनी तेजी से आगे चल रही है और इस कॉलेज में लगभग 50-50% का रेशियो है, ये आपको शायद पता हो। वो आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि इसमें छात्राओं की क्लासेस 3-4 सेंटर पर चल रही है, तब भी सुबह यहाँ छात्राओं की भीड़ लग जाती है और मैं रोज एक्स्ट्रा जिनको नहीं बुलाया है वो भी आ जाते हैं और सबकी कक्षाएं हो रही। मुझे लग रहा होगा आपको बहुत असुविधा भी हो रही होगी, लेकिन पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती है जैसे बताई, और हमने कोशिश की है कि कुछ और क्लासेस भी आपकी इसी बहाने लगाएंगे। आज हमारी डायरेक्टर मैडम को भी ज्वाइन करना था, प्रोफेसर पायल माको, वो खुद चाह रही थी कि कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से हो और उन्होंने सिर्फ अपनी तरफ से एक छोटी सी कविता पढ़ भेजी है कि आप मेरी तरफ से पढ़ लीजिएगा, तो मैं सोचता हूँ उनका ये दायित्व में निभा लेता हूँ आपको। बहुत छोटी सी ये उन्होंने भेजा है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामना आप सभी के लिए। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी खुद की नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर बनना है, अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगत की, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। ये हमारी डायरेक्टर ने आप वो खुद भी प्रिंसिपल है महिला कॉलेज के, आपको पता होगा राजपूत कॉलेज के, और आज वहाँ भी कार्यक्रम है और विश्वविद्यालय में भी कार्यक्रम चल रहा है, तो उस कार्यक्रम में भी समस्या हो रही। आगे हम और भी बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे और अपने गुरुजनों से सभी जो हमारी महिला शक्ति है यहाँ पर बहुत बड़ी, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि बच्चों को और भी कार्यक्रम में शामिल करें। तीसरी एक चीज जो महत्वपूर्ण आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, हमारा विश्वविद्यालय 60 वर्ष वो कंप्लीट कर रहा है अपना 5 मई, और पूरे वर्ष आप लोगों से अनुरोध है, पूरे वर्ष ये कार्यक्रम चलेगा। कुछ कार्यक्रम बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ विभिन्न प्रकार के कई कार्यक्रमों की रूपरेखा बन रही है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी सहयोग दें। और मुझे पता है कि आप जैसे बहुत ही अच्छे लोग हैं जो इसमें क्रिएटिव एक्टिविटी कर, किसी भी रूप में, कोई जरूरी नहीं कोई कविता जानता हो, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी जानता, कुछ भी जो कुछ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप अपने विद्यालय के नाम को रोशन करने के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए। आज के दिन सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और दोबारा आप सबको नमन करता हूँ। Now we would like to invite our deputy directors to share some thoughts on the International Women's Day. Please be with us, sir. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाइयाँ आज का दिन कुछ महान महिलाएं, ये हमारी पुरातन संस्कृति में महिला का जो स्थान है वो सर्वोपरि रहा है, और सर्वोपरि भी ना रहा हो तो एक पद जरूर रहा है। हमें राधा का नाम है सीताराम और शिव पार्वती, आपने कभी भी शिव और पार्वती को अलग अलग नहीं देखा होगा। जो भी आपने देखा होगा शिव जाएंगे तो पार्वती साथ जरूर उनके जाती है। मैं अपना स्वयं का एक आपके सामने ये कि मैंने शादी के बाद I have never traveled alone outside of Delhi.
तो मैं अब देखिए अक्सर जाना रहता है और इवन मार्केट में जाएंगे तो फिर लोग कहते हैं ये तो जैसे शिव पार्वती साथ जाते हैं मार्केट में जाना होगा, फल सब्जी लेने जाना होगा, कोई भी छोटा बड़ा काम होगा साथ जाना। सुबह भी हम गए दूध लाना था, चलो वही चलना है लाना है तो ठीक है जी बैठो गाड़ी में और अपना चले गए। तो मैं और इसके अलावा अभी बच्चा राजस्थान से था, राजस्थान गुजरात में महिलाओं का जो एक कंट्रीब्यूशन है मुझे खुद याद है। मेरा पूरा बचपन गांव में ही था। मैं 8th क्लास से स्टडीड इन विलेज, उसके बाद 9th क्लास में मैं यहाँ दिल्ली में आया। तो मेरा 8th क्लास तो काफ़ी 8वीं क्लास में तो बच्चा बड़ा काफ़ी हो जाता है। तो एक्सपीरियंस मेरा ये क्या कहता है मुझे कि माई मदर एंड ग्रैंड मदर तो सुबह उठना 5 बजे 4 बजे आटा चक्की पर पीसना वो रूटीन है। फिर गाय भैंस का दूध दोना, कुएं से पानी लाना, उसके बाद खाना वगैरह बनाना, ये और रात तक आखिर में जब सब खा चुके होंगे तो वो स्वयं भोजन ग्रहण करके फिर और अपना। तो मैं ये आपको सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि और महिला का जो एक एम्पावरमेंट है वो अभी आप क्योंकि पॉलिटिकली मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। कल मैं थोड़े ये एग्जिट पोल वगैरह देख रहा हूँ तो उसमें कुछ बताया थे भाई महिलाओं में किस पार्टी को क्या मिला वगैरह वगैरह। तो अब देखिए एम्पावरमेंट की जो भी चाहे वो गैस कनेक्शन हो शौचालय हो ये कल्पना की गई उसका डिविडेंड भी मिलता है, मिल रहा है। शेयर ऑफ वोट्स अमंग फीमेल टू ए पर्टिकुलर पर्सन और इंडिविजुअल और पार्टी बट मोर देन अदर्स। वो उन्होंने पकड़ लिया ये कि भाई महिला का इम्पोर्टेंस है। और आप देखिए कि आज के दिन ही कुछ हमारे इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि आज है और देवी अहिल्याबाई होलकर इनकी भी आज पुण्यतिथि है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज दिन को याद करने के लिए भी उपयोग में होना चाहिए। मैडम कामा जिन्होंने हमारे तिरंगे की कल्पना करी, फिर उसके बाद में गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती, सब नाम सुने होंगे आपने। और उसके बाद कल्पना चावला, दुर्गा भाभी, ये एक्चुअली चंद्रशेखर आजाद को इन्होंने ही वो पिस्टल जो है वो मुहैया करवाई थी। और फिर सुनीता विलियम्स का नाम कौन भूल सकता है। और राजमाता जीजाबाई, शिवाजी का जो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसके पीछे जीजाबाई का ही काफी बड़ा रोल है। और जैसे कहते भी हैं कि भैया फॉर एवरी सक्सेसफुल मैन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ए पर्टिकुलर मैन इंडिविजुअल देयर इज ए फीमेल हैंड। तो वो बात भी है, ये कहीं काफी हद तक सही है। और वर्ल्ड लेवल पर आज आप देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो चाहे सोशल वर्ल्ड हो पॉलिटिकल वर्ल्ड हो, इसमें फीमेल कहीं पीछे नहीं। और ये इंडियन जो, क्योंकि मैं एक पेपर भी पढ़ाता हूँ आजकल, इंडियन इथोस एंड ट्रेडिशंस के नाम से पेपर हमारे यहाँ चलता है पीजी लेवल पर। तो उसमें ये चीज़ें हम पढ़ाते हैं कि भाई हमारे यहाँ फीमेल का काफ़ी रोल अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है ट्रेडिशनली। और फीमेल को कहीं बांधा नहीं गया, उसको फ्रीडम दी गई। ये यूनिक है। आपको जानकर शायद अचरज होगा कि फ्रेंचाइज का जो वोट देने का अधिकार वेस्टर्न कंट्रीज में काफी बाद में आया है फीमेल के लिए। तो बड़ी जो मॉडर्न सोसाइटी अपने आप को बोलती है वहाँ फीमेल को काफी दबाकर, इंडियन ट्रेडिशन में फीमेल को आई थिंक मुझे नहीं ऐसा महसूस होता कि फीमेल को कहीं दबाकर रखा गया होगा। तो आप द्रौपदी का नाम भी ले सकते हैं इसमें। और अब मैं एक मंत्र है उसके द्वारा उसको पढ़कर फिर मैं
समाप्त करूँ, अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो ये हम सुबह प्रातः स्मरणीय मंत्र बोलते हैं, उसमें हम याद करते हैं अपनी महिला शक्ति को। तो अरुंधत्या सूर्या सावित्री जानकी सती द्रौपदी कण्वकी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मी रहल्या चन्नम्मा रुद्रांबा सुविक्रमा निवेदिता शारदा च प्रणव्या माता देवता। ये प्रातः स्मरणीय मंत्र हम लोग अपने संस्थान में बोलते हैं और ये बुलवाया जाता है हमारे जो हमारे ये होते हैं। तो ये मैंने इसलिए बोला कि ये भी मंत्र मातृशक्ति को डेडिकेटेड है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी। Thank you, sir. Now we would like to invite Professor Suman Verma, sir. Please, sir. थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत समय नहीं लूँगा। मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों सभी को शुभकामनाएं दूँ इस इंटरनेशनल महिला दिवस पे। और जस्ट मैं आने से पहले देख रहा था कि ये क्यों शुरुआत हुआ, तो आपको जान के आश्चर्य होगा ये कहाँ से शुरुआत हुई थी। सबसे पहले अमेरिका, सबसे डेवलप्ड कंट्री, 1908 8 मार्च। एंड क्या था डिमांड उस लेडीज एसोसिएशन का? पहला डिमांड, मुझे वर्किंग लेडीज थी, वो सारे काम जो कर रहे थे, मुझे 1 घंटा वर्किंग आवर्स कम किया जाए और मुझे स्पेशल प्रिविलेज और वेतन थोड़ा बढ़ा के दिया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ऐसे देश में ये डिमांड उठी है और उसके बाद 1 साल के बाद ये सेलिब्रेशन मनाना पड़ गया और फिर 1975 कब से यूनाइटेड नेशन ने इसको फॉर्मल इंटरनेशनल मूवमेंट किया। तो मेरा जो कैच पॉइंट था कि ये ऐसी डिमांड अगर अमेरिका से उठी थी तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है। तो मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं अपनी टीम और डॉक्टर वोयला जी हैं और पूरे कामदार यंग टीचर्स जो हमारे इन्होंने इनिशिएटिव लिया उनके लिए उनकी बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। Now we would like to invite Professor Sudhir Sharma, sir. Please welcome, sir. बेटे आप सब लोगों को शुभकामनाएं। आज दरअसल में इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, ये वहां से चली थी, वहां थी, हमारे यहाँ ये इतनी बीमारी थी ही नहीं। हमारे यहाँ हमेशा जो है महिलाओं को बहुत अच्छा दर्जा दिया जाता था। आप ही ये तय करती थी कि किसको मुझे चुनना है। स्वयंवर होते थे, हम लोग आकर के अपनी तकदीर आजमाते थे कि मेरे गले में डाल दे। जमाना मेरे बच्चों बहुत तेजी से बदल रहा है। एक टाइम था, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ क्योंकि मेरी मदर जो है 90 साल की है। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहती थी गांव में जब बारात भी आती थी तो मेरे माँ बाप कहते थे देखने भी नहीं देते थे, कहते अंदर बैठो। आज आप पढ़ रहे हैं यहाँ बैठे हुए, जमाना बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, अभी और बदलेगा। रही बात ये कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन चीजों को लेकर के पिछले 50 साल से पेरेंट्स डरते थे वो कुछ ही वर्षों की दी हुई चीजें हैं, उससे पहले ये थी ही नहीं। स्वतंत्र थे आपकी साली वो होती थी। बहुत लिटरेचर का आदमी हूँ, बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर उसको समराइज करके बोलने की कोशिश करता हूँ। बेटे तुम नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। धन्यवाद। ये जबरदस्ती माँ बाप ये कहते हैं कमजोर हैं, कमजोर हैं। ना ना ना, आपको पता ही नहीं है एक्चुअल में नारी कभी कमजोर हो ही नहीं सकती। जो हम जैसों को जन्म दे सकती है, आप जैसों को जन्म दे सकती है, वो भला कमजोर कैसे हो सकती है? अपनी ताकत को पहचान के हनुमान जी से कहा गया लंका जाओ,
वो सुन ही नहीं रहे थे, वो अपना उसमें बैठे हुए थे। तो जो जामवंत जी थे उन्होंने उनको बताया कि अरे यार तू कर क्या रहा है, उनको बताया उनकी शक्तियों के बारे में जो वो भूल गया था। वही मैं आपको याद दिला रहा हूं। जैसे ही उसने बताया तू तो पैदा ही इसलिए हुआ है, तुम तो हुए ही इसलिए हो। आज आप देख रहे हो डिमांड कहां तक पहुंच गई है आपकी, कि अब मैं देखता हूं कि लेडीज ये कहती हैं कि हमें अगर ड्राइवर भी चाहिए तो वो भी लेडीज चाहिए, हमें आकाश में उड़ाने वाला चाहिए तो वही चाहिए। आपकी भर्तियां शुरू हो गई हैं फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए। जमाना तेजी से बदल रहा है। हेलो, अब मैं आपको ना 2 लाइन बोल करके जो है वो बात खत्म करता हूं, क्योंकि अभी पहचानिए, तुम तो दरिया हो, तुम में हुनर है, जहां से गुजरोगे रास्ता बन जाएगा। धन्यवाद। Now we would like to invite Dr. Vairav Singh ma'am. Please ma'am. सभी को शुभकामनाएं इस महिला दिवस की। हालांकि महिला दिवस एक दिन का नहीं होता, महिलाएं तो हमेशा से ही जो भी कुछ कर रही होती है हमेशा ही करती है। एक दिन डेडिकेट करने का मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंस यही है कि बाकी लोगों को या बाकी मर्दों को ये समझाया जाए कि देखिए कि महिलाओं की क्या इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में। अगर महिलाएं ना हो तो घर में क्या हो जाएगा, किस तरह से हो जाएगा। और आखिर में मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि महिलाओं को पुरुषों जैसा नहीं बनना है। Yes, मैं नहीं देखना कि हम पुरुषों जैसे हो जाएं, हम उनके जैसे कपड़े पहने, हम उनके जैसे बिहेव करें, हम उनके जैसे एग्रेसिव हो जाएं। तो महिलाओं को अपना जो स्त्री और जो क्या बोलते हैं वो जो होता है वो अपनी फेमिनिटी को मेंटेन रखना है, क्योंकि उन्होंने ही फ्यूचर जनरेशंस को संभालना है। इसलिए आजकल ये जो ट्रेंड चल पड़ा है कि सभी महिलाएं जो पढ़ती लिखती हैं या आगे बढ़ना चाहती हैं वो चाहती हैं कि वो पुरुषों की तरह हो जाए और उसी तरह से ड्रेसअप करें, उसी तरह से बिहेव करें, उसी तरह से एग्रेशन उनके अंदर आए या गुस्सा आए। ये बात जो है ये ठीक नहीं है। स्त्रियों को अपना जो महत्व है वो अपने जो फेमिनिटी है उसको बरकरार करने में ही है, क्योंकि उन्होंने ही आगे की पीढ़ी को संभालना है, उनकी तरबियत करनी है, उनको एजुकेशन देनी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की जो है अपने फेमिनिटी को बरकरार रखे और आगे बढ़े। Thank you ma'am. Now we would like to invite Dr. Ashgar Ali sir to share some thoughts on this auspicious occasion. शुक्रिया। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंसिपल साहब का और इंतजामिया कमेटी का कि ये मुझे मौका दिया गया जब मैं अपनी बात रख सकूँ आप लोगों के सामने। दूसरे कि यौम ख़वातीन के अवसर पर मौका पर महिला दिवस को यौम ख़वातीन मतलब जो है ना विमेंस डे कहते हैं, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हुई। और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको तारीखी मैं थोड़ी सी अपनी बात चंद बातें कहूँगा, लेकिन तारीखी पर्सपेक्टिव में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कि एक शेर से जो बाका आपने सुना है शायद। मशहूर है हमारी की तारीख साजियां मतलब बनाना। मशहूर है हमारी की तारीख साजियां, हमने भी तूफानों को रास्ते दिखाए हैं। हमसे नजर मिलाएगी क्या ये गर्दिशे जहां, हमने तो बिजलियों के नशे में जलाए हैं। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब और डिप्टी डायरेक्टर साहब तारीखी पस मंजर में जो हमारे अहम जो
किरदार निभाया है हिंदुस्तान में, उनके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अब वो हम उसमें मजहबी शख्सियात को ले लें या फिर सियासी शख्सियात को ले लें जो सियासत से जुड़े रहे, या फिर वो उनको लें जो अदब से, साहित्य से जुड़े रहे, और ऐसी ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को की रहनुमाई की है। उस हवाले से अब जैसे ये बात आई कि वुमेन्स डे की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हमारे वर्मा से बता रहे थे कि वुमेन्स डे की शुरुआत जो है वो अमेरिका से हुई, लेकिन आज तक अमेरिका में कोई खातून प्रेसिडेंट नहीं बन पाई, लेकिन हमारी तारीफ है कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट भी बनी, मुख्तलिफ फील्ड में आज भी जो है ना, मुख्तलिफ फील्ड में लोग जो है ना बड़े बड़े पोजीशन पे अपना काम अंजाम दे रहे हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, तो ये हमारी तारीफ है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं। अब रहा सवाल कि हम जिस तहजीब से हैं, जिस कल्चर से हैं, हमारी जो तहजीब है, हमारा जो कल्चर है, वहाँ हमें देवी का या बहुत सम्मानित दर्जा जो है ना दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ बराबरी की बात आती है वहाँ पे हमें अपने हक के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। आज भी जो है ना खातून जो है, आज की जो औरतें हैं या लड़कियां हैं, वो अपने हक के लिए वो लड़ रही हैं। अब मैं इस हवाले से बात करूंगा कि 1857 के आसपास में आप जाएंगे तो उस जमाने में अंग्रेजी तालीम के लिए लोगों को जो है ना बार बार उकसाया जा रहा था कि भाई आओ आगे बढ़ो तालीम से, साइंटिफिक तालीम से आप जुड़े। तो उस वक्त के जो कुछ हजरात थे शायर, तो उन्होंने उसकी मुखालफत की। अब उसमें एक नाम था अकबर इलाहाबादी का। तो पर्दा के हवाले से वो कहते हैं कि बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां, बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां, अकबर गैरते कौमी से जमीन में गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। तो ये अकबर इलाहाबादी उस जमाने में कह रहे थे। अब उसके बाद आप आएंगे तो अल्लामा इकबाल ने कहा वजूद जंग से है तस्वीर कायनात में रंग, कि औरतों के वजूद से, उसके एग्जिस्टेंस से ये पूरे कायनात, पूरे यूनिवर्स में जो है ना रंग है या हरारत है या तवानाई है या तमारत है, वो औरतों के ही वजूद से। अगर औरतें ना हो तो यूं दुनिया जो है ना यूं ही नेस्तनाबूद हो जाए, सारी तहजीबें मिट जाए। तो वो अल्लामा इकबाल थे, लेकिन जो हमारे प्रोग्रेसिव राइटर पोएट मूवमेंट का जमाना आता है, तो उस वक्त जो 1936 में प्रेमचंद जो हमारे बहुत ही अहम फनकार, अदीब, साहित्य के जो रहनुमा, उन्होंने कहा कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। हमें जो है ना अब तक के जो हमारे अदब में जो मामला थे, या हम जिस तरह से औरतों को देखते थे, या जिस तरह की जो है ना नॉवेल लिखते जा रहे थे, जिस तरह की शॉर्ट स्टोरीज लिखी जा रही थी, कि नहीं, हमें उसको बदलना होगा। हमें बादशाहों के ऐवानों से, रऊसा की घर से, या शहजादियों के लबो-रुखसार से हट करके हमें मजदूर, किसान, आम इंसान और जो मसाइल है उसको सामने लाना होगा। ये प्रेमचंद थे। प्रेमचंद के बाद जो जमाना आता है उसमें एक
असरारुल हक मजाज। असरारुल हक मजाज कहते हैं कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। परचम जो है ना, तुम्हें आना होगा, तुम्हें अपने हुकूक के लिए लड़ना होगा, तभी तुम्हें जो है ना हुकूक मिलेंगे। कहने पे बहुत सारी बातें, लेकिन नहीं, मैं 2 शेर कहूँगा, मैं 2-3 शेर कहूँगा बस। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। कल्ब माहौल में लरज़न शेर जंग है आज, हौसले वक्त के और जिस्म के यक रंग है आज। आप दिनों में तपन वलवले संग है आज, हुस्न और इश्क हम आवाज़ और हम आहंग है आज। जिसमें जलता हूँ मैं उसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। कि उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। अपनी तारीफ का उन्वान जो है ना, क्या कहते हैं, सुर्खी मतलब टाइटल को, अपनी तारीफ का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। ऐसा लग रहा है कि ये दिन चलता रहे, कभी खत्म ना हो। बट कुछ बच्चों के पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं, और गिवन द वुमेन्स डे तो हम सबको थोड़ा सा हक है कि हम अपने बिजी शेड्यूल से निकाल कर टाइम थोड़ा आराम भी करें। तो इसीलिए गिवन द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम एंड द टाइमिंग्स ऑफ आवर